Welcome back again, young minds. So, now we will be studying about relationship between social interest and the business interest. अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? Reality of the social responsibility. Like what makes the business mandatory to follow the social responsibility. उसमें से हम पहले 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं. Those were first was threat of public regulations, then second was pressure of labor movement, and then impact of consumer consciousness and development of social standard for the business, and not last but least development of business education. And now in this particular section we will be covering relationship between social interest and the business interest. इसमें क्या बोला है कि जो अपना सोसाइटल एस्पेक्ट है और जो बिजनेस एस्पेक्ट है, बिजनेस एक्टिविटीज है, दे आर नॉट अपोजिट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, एक अपने पास कॉन्सेप्ट होता है सब्स्टिट्यूशन का और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूशन मतलब कि यू आर रिप्लेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड कॉम्प्लीमेंट्री you have that product, but to use that product you need some complementary accessories also. आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में ऐसा. वही बोला है कि जो एक बिजनेस इंटरेस्ट है, इट कैन नेवर बी होलसम विदाउट सोशल इंटरेस्ट. आप जिस लोकेलिटी में बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप सोसाइटल नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर रहे या फिर ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट में विच आर यूजलेस और विच आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी, तो आपका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो कैसे सेटिस्फाई होगा? Business interest will give profit, but that profit should be earned from the society, and for earning that profit you must deliver the useful goods, useful services to the society. You should work for the society. तो यही बोला है कि बिजनेस इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पिलर्स. इसे थोड़ा बुक से पढ़ते हैं एंड देन वी विल मूव टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. Relationship between social interest and the business interest. Business enterprise have started realizing the fact that social interest and the business interest are not contradictory. यानी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. Instead, these are complementary to each other. The feeling that business can grow only through the exploitation of society has given way to believe that long-term benefit of business lies in serving the society well. पहले क्या होता था बिजनेस का माइंडसेट कि वी नीड टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज एट बेस्ट पॉसिबल मैनर, वी नीड टू एक्सप्लॉइट आवर वर्कर्स, वी नीड टू हैव ओवर टाइम फ्रॉम देम विदाउट गिविंग द मनी. ऐसा अपना परसेप्शन चलता था. बट with the evolution of time, with the evolution of education, with the awareness between consumer, investor, employees and the business owner itself, आपको क्या समझ आया कि सोसाइटी का इंटरेस्ट भी, सोसाइटी को सर्व करना भी अपने लिए उतना ही जरूरी है जितना कि प्रॉफिट मोटिव. So, also a useful institution like business is recognized as an essential element of a modern civilized society. तो इसने बोला है कि जो अपनी मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी है, बिजनेस उसका एक असेंशियल एलिमेंट है. तो अब ये तो अपनी हो गई प्लेन रीडिंग. अब हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वे में समझते हैं. So we have PPT, the evolving relationship between business and the society. Business and society के बीच में relationship किस तरीके से established है, हम उसको समझने वाले हैं. So let's get started. तो old mindset हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं कि profit profit profit, and now the modern understanding is business thrives when society prosper. Business तभी grow करता है when society grows, right? And business will survive long when it serves the societal needs. Then we have they are not opposite, they are complementary to each other. जब तक आप सोसाइटी का हाथ नहीं थामोगे, जब तक आप सोसाइटी का साथ नहीं निभाओगे, तब तक एक बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता. हाउ बिजनेस बेनिफिट सोसाइटी. अब हम रियल सेंस में देखने वाले हैं कि हाउ बिजनेस इंटरेस्ट इज इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन द सोसाइटल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट. फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन.
एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैसे, जिस लोकेलिटी में आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है, इंडस्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, वहाँ पे यू विल प्रेफर कि आपको लोकल वर्कर्स मिल जाए, लोकल लोग वहाँ के काम करें, तो आप क्या कर रहे हो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहे हो। एंड नॉट इवन दैट, आप जैसे ही उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हो, तो they gradually start earning and their standard of living improves। लाइक आपके बिजनेस की वजह से बहुत सारी फैमिली के जो चूल्हे हैं वो जल पा रहे हैं, लाइक उनका जो आजीविका है वो चल पा रही है। ठीक है, चूल्हे यानी कि स्टोव, गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर एंड स्टोव। इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड प्रोग्रेस कैसे, कि जो कंपनीज है वो R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे कि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, विच विल हेल्प द सोसाइटी इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एनवायरमेंट। एंड देन आफ्टर दैट, क्योंकि अब बिजनेस ग्रो हो रहा है, उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट की, एंड उसके साथ साथ वो R&D कर रहा है, R&D के साथ साथ उसकी जो रिवेन्यू है, उसका जो सेल्स फिगर है वो बढ़ रहा है। एंड जैसे ही सेल्स फिगर बढ़ेगा, जैसे ही बिजनेस सक्सेस होगा, वहां से गवर्नमेंट क्या करेगी, उस बिजनेस से टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि बिजनेसमैन हैव टू पे द टैक्स ऑन द अर्निंग। तो जैसे ही वो अपनी अर्निंग पे टैक्स देता है, वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है, एंड गवर्नमेंट यूज दैट फंड इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड क्लीनलाइनेस प्रोग्राम्स, मैनी मोर टू से। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ही है, तो क्या क्या नहीं बताया जा सकता। तो हाउ बिजनेस बेनिफिट सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इनोवेशन एंड प्रोग्रेस, एंड देन टैक्स रिवेन्यू। आफ्टर दैट, हाउ सोसाइटी बेनिफिट्स बिजनेस। पहले हमने देखा कि बिजनेस एंड सोसाइटी किस तरीके से इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंट है, एंड नाउ वी आर स्पेसिफिकली discussing about how society benefits business। एक तो आपने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की थी, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो यहाँ पे बिकॉज आपकी जो लोकल लोकेलिटी है, लोकल पीपल है, हो सकता है वो इतने ज़्यादा स्किल्ड ना हो, तो आप उनको वेल एजुकेट करते हैं, उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, सो दैट दे मे गिव यू द रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट। एंड आफ्टर दैट, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कैसे, आपका प्रोडक्ट इतना यूजफुल है, एंड क्योंकि आपने एम्प्लॉयमेंट दी है लोगों को, तो यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है लोगों की बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ दे आर अर्निंग। सॉरी। तो यहाँ पे जो आपके लोकल सोसाइटी है वो अर्न कर पा रही है, ही इज गेटिंग द इनकम, एंड because now he is having money in the pocket, he is now able to purchase the product। उसके बाद है सोशल लाइसेंस। आप कम्युनिटी के बीच ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस बिल्ड करते हो, तब जाके जो आपका बिजनेस है वो ग्रो करता है, वो एक्सपेंड करता है। देन वी हैव रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरी, जिसमें कि हम पढ़ने वाले इन्फोसिस फाउंडेशन का। इन्फोसिस फाउंडेशन ने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं बेचे है, इट्स इन्वेस्टिंग ऑन द एजुकेशन, such as building schools, library, educational programs in rural India। And after that, social impact। इससे क्या हुआ, स्कूल्स खोलने से, लाइब्रेरी खोलने से, एजुकेशनल कैंपेन लगाने से इम्प्रूव्ड लिटरेसी रेट एंड स्किल डेवलपमेंट आया। नॉट ओनली द बुकिश लैंग्वेज, इन्फोसिस हैज इंट्रोड्यूस सम programs where your skills are being enhanced। and after that, because आप अब skilled हो चुके हो, तो you are able to apply for the company with the required skill sets। तो business benefit कैसे, enhanced reputation, attracts top talent and build long term customer loyalty globally, right। तो in short,
इन्फोसिस ने क्या किया, एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट की, जिससे कि लिटरेसी रेट बढ़ा, एंड लिटरेसी रेट बढ़ने से स्किल्स भी लोगों में आई, जिससे कि अब रेपुटेशन भी अच्छी है बिजनेस की, एंड आप टॉप टैलेंट को क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, हायर कर सकते हो इन योर कंपनी. So that was the impact on the business. And after that we have geo revolution. इनका क्या था, now you will be able to easily understand the bifurcation between social interest and the business interest with the case study of this geo revolution, the affordable digital access. सोशल इंटरेस्ट में क्या, कि जियो ने इंटरनेट सर्विसेज को पहले बीच में फ्री कर दिया था, एंड देन फ्री करने के बाद लोग जब यूज हो गए थे तो नॉमिनल प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था, अफोर्डेबल फॉर मिलियंस हो गया था. उसके बाद क्योंकि ये फ्री हो गया था, एंड जो टावर्स है वो आपने रिमोट एरियाज में भी इंस्टॉल कराए थे, तो वहां पे जो रूरल एरियाज है उनको भी क्या मिल गई थी, डिजिटल इकोनॉमी की एक्सेस मिल गई थी. एंड देन it also enabled the online education and healthcare. You are very well aware that India was suffering from COVID 2020. तो वहां पे जियो ने स्टैंड लिया था, एंड दे गिव द नॉमिनल प्राइस इंटरनेट सर्विसेज टू होल इंडिया. इससे सोशल इंटरेस्ट आपको समझ आ गया कि अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज मिली, रिमोट एरियाज में भी हमें एक्सेस मिली, एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में भी क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ विद द रिमोट एक्सेस. एंड उसके बाद बिजनेस इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज ऑल ओवर द इंडिया यूजर्स आर हैविंग द एक्सेस टू द जियो फैसिलिटीज, तो वहां पे जो जियो रियलाइंस है वो क्या हो गई, लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन गई, एंड वी हैव एयरटेल ऑल्सो. देन उसके बाद जनरेटेड मैसिव सब्सक्राइबर बेस, क्योंकि पहले उन्होंने प्रीमियम मॉडल रखा, देन नॉमिनल चार्जेस इम्पोज किए, तो वहां से उनके सब्सक्राइबर क्या हो गए, बढ़ते गए, एंड क्योंकि उनके अब सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो इट इज द potential that those subscriber with the potential subscriber also will buy the new services in the future also, right? बीच में ऐसा भी हुआ था कि जियो ने अपने जो प्राइसेस है वो हाइक कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने पूरे 1 ईयर का भी रिचार्ज करा लिया था. फिर उसके बाद हेल्थ केयर फॉर ऑल, बाइकॉन्स मिशन. ये किसका मिशन था, बाइकॉन्स का. इसमें क्या था, इसमें केस ये रहा था कि वो क्या करेंगे, अफोर्डेबल मेडिसिन आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज एंड कैंसर. R&D करेंगे जिससे कि दवाइयों को और चीपर बनाया जा सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी. एंड उसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ, जिससे कि कस्टमर में वो ट्रस्ट बिल्ड कर सके, एंड उनका जो मार्केट साइज है वो क्या हो जाए, लार्ज हो सके, जिससे कि एक्सपेंशन भी हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सके. यू आर catering the societal needs with affordable medicines, giving R&D services, project improvements for the cheaper medicines, and then sustainable growth. सो इसका वर्चुअस सर्कल क्या है, यानी कि साइकिल कैसे चलती है बिजनेस एंड सोशल इंटरेस्ट को साथ में लेके. पहले जो बिजनेस है वो सर्विसेज देता है सोसाइटी को इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फेयर प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि अब जो सोसाइटी है उसमें ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, एंड कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है, जिससे कि अब बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा. वी आर moving in clockwise direction. First business services society, and उसके बाद society trust business, and business grows with increased sales and better reputation. And after that, because अब business के पास increased sales है, increased profit है, better reputation है, then he will also give back to the society in the form of CSR activities, corporate social responsibility. Then also establish some infrastructure and education programs. So business क्या है, is it's like a partner to the society in the form of sustainable approach. Business that balances profit with the purpose build lasting success. Profit आप कमा रहे हैं बट विद द पर्पस, जैसे कि हमने पिछले सेशन में एग्रीकल्चर, सोलर एनर्जी एंड इरिगेशन का एग्जांपल लिया था. फिर उसके बाद जो क्रॉप वेस्टेज है उसको रोकने के लिए अपने पास एग्रो वेव आई थी, वो सब हमने देखा था. Then we have mutual benefits. Society and business interests complement and strengthen each other.
So that was the understanding of these particular aspect. तो relationship between social interest and business interest आपको समझ आ गया होगा कि how they are interlinked with each other. So now we are, as usual, will summarize all those points as discussed. So firstly I will make you write down the how business benefits society. How business benefits the society. देखो मैं पीपीटी पता है क्यों बना के लेके आती हूँ, ताकि तुम सुनने के साथ साथ स्क्रीन पे भी फोकस रखो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है वी हैव दैट स्टूडेंट ऑल्सो कि उनका लिसनिंग इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट with the visualization and simultaneous listening उनके ब्रेन में कॉन्सेप्ट अच्छे से फीड हो जाता है, राइट? हालांकि मैं इसको डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊं और डिस्कस पूरा कर दूं तो भी काम चल जाएगा, बट आई वांट यू टू गाइस टू विजुअलाइज द थिंग्स and to have the 100% concentration on the concept. So how business benefits society: employment, innovation and progress, and tax revenue. Employment, innovations and progress, and tax revenue. These were how business benefits the society. Then we have how society benefits business. अब society business को कैसे benefit करती है? How society benefits the business. First we have skilled workforce. Then second we have market demand. Purchasing power के बारे में पढ़ा था. Then we have social license, right? After that, we have covered the real world success stories of Infosys. इसमें हमने क्या देखा? एक तो एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रा. इंफ्रा था वहां पे? नहीं. उसके बाद था जियो. जियो ने क्या किया? इंटरनेट एक्सेस टू रिमोट लोकेशंस. देन उसके बाद हेल्थ केयर फॉर ऑल, बाइकोन्स मिशन. बाइकोन्स मिशन इसका क्या था? हेल्थ केयर फॉर ऑल, स्पेशली कैंसर एंड diabetes ailments. Ailment simply you can say the disease. Okay. And after that we have gone with the virtuous cycle. Virtuous cycle तो लिखवाने की नीड है नहीं. फिर बिजनेस इज सोसाइटी इज पार्टनर. यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिजनेस इज पार्टनर टू द सोसाइटी. That's it. So it was the crux, it was the written form of whatever we discussed in this session. So I am expecting that you are revising the previous session also, so that it will be having the strong grip over the concept, right? So let's wind up the session here, and all the best. Keep revising.